अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि आप जानते हैं कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, और हम बात कर रहे हैं वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। तो इसी से जुड़ा एक और टॉपिक जो है दैट इज फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो जमहूरियत है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसके क्या क्या फ्यूचर्स हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो, द मॉडर्न डेमोक्रेसी इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी and it's a system of government. So keeping in view its representative character and the system of government, there are 5 key features. There are 5 key features which we are going to discuss today. 5 key features of the democracy, keeping in view the representative character of the democracy into consideration and the responsible government. So we are discussing today the 5 key features of the democracy. Number first is free and fair elections. So the first key feature of the democracy is free and fair periodic election. So this election is for choosing and replacing the representatives who actually run the government. The second important feature of this democracy is the active participation of the citizens. The active participation of the citizens. So, when the citizens participate in the election to elect their representative, the roots of democracy become stronger. So, this is the second important feature or characteristic of the democracy. Third is protection of the rights of citizens. So it's a duty of the state to protect the rights of the citizen. When the rights of the citizens are protected, we can say that this state is having a good democracy. Fourth is rule of law. Rule of law. So we can say when law is supreme, when the priority is given to the law, not to the individual. So when the law is considered as a supreme authority, we can say that the state is having a sound democracy. And number fifth is consensus
and tolerance as the limits and requirements for democracy. So when there is a consensus between the citizen and the government, and when the people are having the power of tolerance, and the people are having the capacity to tolerate the requirements which the people are having, and whether these requirements will be fulfilled or not. But people should be having a power of tolerance, a capacity to tolerate the actions of the government. So when there is consensus for that tolerance between the state and the individual, the state and the citizen, we can say that the state is having a sound democracy. So these are the 5 key features of the democracy. Now we are going to discuss one by one. So first of all, the first key feature which we are going to discuss is free and fair elections. तो इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस. देखिए, डेमोक्रेसी का जो मतलब है, डेमोक्रेसी हम डिफाइन जब करते हैं, सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल, इज अ रूल ऑफ द पीपल. और हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं. सो वी कैन से डेमोक्रेसी इज अ मीन्स फॉर द पीपल. इट्स अ मीन्स फॉर द पीपल. वी कैन से डेमोक्रेसी is the means for the people to choose their leaders, it's a means for the people to choose their leaders and to hold their leaders accountable for their policies and their conduct. So it's a means for the people to choose their leaders. Not only this, इतना ही नहीं कि लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने लीडर्स को चूज करें, बल्कि इसके अलावा एंड टू होल्ड देयर लीडर्स अकाउंटेबल, यानी आपका लीडर जो इसको आपने इलेक्ट किया, जिसको आपने पार्लियामेंट में भेजा, जिसको आपने असेंबली में भेजा, क्या वो लीडर आपका काम, आपके सोसाइटी के काम, आपके स्टेट के काम जितने भी हैं, क्या वो उन कामों पे उभरता है? क्या वो अपनी ड्यूटी फेथफुली निभाता है? क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेथफुली निभाता है? तो ये भी ड्यूटी लोगों को, ये भी पावर असाइन किया गया है डेमोक्रेसी में, ये भी पावर लोगों को असाइन किया गया है सो दैट they will hold their leaders accountable for their policies and their conduct in their offices. क्या जिसके लिए हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजा है या पार्लियामेंट में भेजा है, क्या वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लीडर्स, क्या वो हमारे काम जो है, हमारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हमारे डे टू डे नीड्स जो हैं, क्या उन नीड्स को वो रिप्रेजेंटेटिव्स फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं? सो डेमोक्रेसी में ये आपको हक दिया गया है. डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में
ये लोगों को हक दिया गया है so that they will hold their representatives accountable for their jobs, for their assignments, for their responsibilities. तो ये डेमोक्रेसी ने लोगों को हक दिया है. सो डेमोक्रेसी में क्या है कि द पीपल डिसाइड, लोग ही डिसाइड करते हैं कि हम किसको पार्लियामेंट में भेजेंगे, हु विल हेड द गवर्नमेंट, हु विल बी द government for the particular period of time at the national as well as the local level. This is the authority which is given to the common people by the democracy. तो डेमोक्रेसी हमें एक अथॉरिटी देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम उन्हें मुंतखब करें और उसके बाद हम उन्हें चाहे पार्लियामेंट में भेजें या असेंबली में भेजें, जहां भी भेजें, तो हमें ये अथॉरिटी दी गई है, लोगों को अथॉरिटी, सिटीजन्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो उनको चुने गवर्नमेंट बनाने के लिए और वो उनको चुने आपके काम करने के लिए, आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको फिलफिल करने के लिए. तो ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी पार्टीज होती हैं, आपके पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं. तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में आप चूज करते हैं, यानी कॉमन पीपल चूज करते हैं कि हम किसको भेजें. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव द एग्जांपल कि एक असेंबली सेगमेंट है. फॉर एग्जांपल, दिस इज असेंबली सेगमेंट 1. यहाँ पे इलेक्शन है, तो कैंडिडेट जो इलेक्शन में उतरे हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं. For example, this is candidate A, this is B, and this is C, and this is D. तो 4 कैंडिडेट्स आपके पास है. ये चारों कैंडिडेट जो है इन्होंने फॉर्म भरा है, इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है. ये असेंबली सेगमेंट 1 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो ये कैंडिडेट्स आपके पास आते. ए इसका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, बी का अपना मैनिफेस्टो होता है, सी का अपना मैनिफेस्टो, डी का अपना मैनिफेस्टो होता है. तो ये लोग जो होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो. तो ये लोग आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए. दीज पीपल कम टू द कॉमन सिटीजन, एक आम इंसान के लिए आते हैं कि हमें वोट दे दीजिए. तो यहाँ पे ये जो सिटीजन है, ये सिटीजन, ही मस्ट बी हाईली एजुकेटेड, ही मस्ट बी हाईली कॉन्शियस होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए. ये इसको इतना जहीन होना चाहिए, इतना जहन इसको होना चाहिए, सो दैट ही विल डिसाइड whosoever I will elect as my representative. क्या उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी है? क्या वो हमें रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम इलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है? क्या उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है? फॉर एग्जांपल, मैं ए को चूज करता हूँ या मैं बी को चूज करता हूँ, कहीं ये ए जो है करप्ट नहीं है, कहीं ये बी जो है कहीं ये इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ये सी जो है कहीं ये हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है, ये डी जो है कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं है. सो दीज थिंग्स one has to take into consideration while giving his or her vote. तो जब आप अपना एक कीमती वोट डालने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है टू whom I should or I must give my vote. मैं किसको अपना वोट दे दूं, यानी इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है. द पर्सन हु इज हैविंग द हाई representative capacity, who is having the leadership quality, who is educated, who is जितने भी क्वालिटीज आपके स्टेट को रन करने के लिए होने चाहिए. सो दीज थिंग्स यू हैव टू डिसाइड प्रायर टू एलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव. तो ये चीजें, ये पावर डेमोक्रेसी ने आपको दिया है, एक सिटीजन को दिया है, जहाँ पे सिटीजन ये डिसाइड कर सकते हैं सो हम किसको अपना वोट दे देंगे. सो वी कैन से दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर sovereign. People are sovereign.
तो ये अथॉरिटी जो है वो लोगों को दे दी गई है. दे आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. सो दीज आर द पीपल हु कैन डिसाइड देयर फ्यूचर, हु कैन डिसाइड द फेट ऑफ देयर सोसाइटी, हु कैन डिसाइड द फेट ऑफ देयर स्टेट. तो ये लोगों तक है कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करें. तो इसमें क्या होता है कि जो पावर शिफ्टिंग होती है, यानी द पावर फ्लोज फ्रॉम द लीडर फर्स्ट, फ्रॉम द लीडर टू द कॉमन पीपल. तो यहाँ पे पावर शिफ्टिंग होती है. तो ये पावर शिफ्टिंग कैसे होती है, यानी मैं कहता हूं कि पहले पावर लीडर के पास होता है, तो ये लीडर पावर को शिफ्ट करता है लोगों के लिए, यानी लोगों के पास अब पावर है कि वो किसको अथॉरिटी दे, वो किसको डिसाइड करे, वो किसको इलेक्ट करे एज ए रिप्रेजेंटेटिव. सो द सोल पावर रेस्ट्स विद द कॉमन पीपल. लेकिन जब लोग अपना वोट डालते हैं, सो ये पावर अगेन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लीडर, यानी आप फिर से ये पावर अपने लीडर को शिफ्ट करते हैं. नाउ द पावर वेस्ट्स विद द लीडर, कि ये लीडर अपने उस पावर का एक्सरसाइज कैसे करे, क्या ऑर्बिटरली करे, क्या फेथफुली करे, क्या ये पावर जो होता है ये परमानेंट नहीं होता है, पावर शिफ्टिंग परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है. इट इज अ टेम्पररी पावर शिफ्टिंग. फॉर एग्जाम्पल इन द इंडियन पार्लियामेंट द पावर इज ओनली फॉर द 5 ईयर. तो 5 साल के लिए आप इस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. फिर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या ऑर्बिटरली अपने एक्सरसाइज अपने फंक्शंस एक्सरसाइज करता है, क्या ये इन ए जुडिशियस मैनर अपने पावर्स इन ए ऑनेस्ट जुडिशियस मैनर एक्सरसाइज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पे पावर शिफ्टिंग होती है. पहले लीडर के पास पावर होता है, फिर जब इलेक्शन का टाइम होता है ये पावर शिफ्ट कॉमन पीपल की तरफ होता है. तो यहाँ पे लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे. लेकिन यहाँ पे जो पावर इन लोगों को दिया गया है, दिस पावर शुड बी एब्सोल्यूट पावर. तो यहाँ पे कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई टायरनी नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए. तो ये जो पावर लोगों के पास होता है, इट मस्ट बी ए जुडिशियस पावर, इट मस्ट बी एक ऐसा सुप्रीम एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए, तो जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकें. सो the free and fair periodic election is the grassroots level of the Indian I mean say the democracy, grassroots level of the democracy. तो यहाँ पे मैंने कहा कि पावर शिफ्टिंग होता है, यानी पीपल अपने पावर्स को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द लीडर्स और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कैसे पॉलिसीज बनाए, वो कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में, वो किस तरह के लॉज बनाए, वो लोगों के राइट्स की किस तरह पामाली करे, उनके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करे. तो ये पूरा पावर जो है वो लोगों वो फिर शिफ्ट होता है फ्रॉम द पीपल टुवर्ड्स द लीडर्स और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे एक और अथॉरिटी लोगों को डेमोक्रेसी में दी जाती है, दैट इज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. यानी अगर जिस गवर्नमेंट को आप चुनते हो, जिस गवर्नमेंट को आप चुनते हो, अगर उस गवर्नमेंट में वो लीडर्स जो आपने चुने हैं, जो आपने इलेक्ट किए हैं, जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपका काम ढंग से ना करें, वो आपका काम फेथफुली एंड जुडिशियली ना करें, जुडिशियसली ना करें, तो आपको एक हक बनता है, आप उस गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, आप इस गवर्नमेंट को इन ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं. आप उनको बोल सकते हैं कि आपको हमने इस काम के लिए भेजा था, आपको हमने डेवलपमेंट के लिए भेजा था, हमने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन चीज़ों के लिए भेजा था, हमने आपको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए भेजा था. क्या आपने इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया? क्या आपने उन डेवलपमेंट जो जिन कामों के लिए हमने आपको भेजा था, क्या वो काम आपने किए? तो डेमोक्रेसी एक हक आपको देती है. तो डेमोक्रेसी एक हक आपको देती है दैट यू कैन क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो वो काम करते हैं उस पर आप नज़र भी रख सकते हैं, क्या ये काम इन्होंने अच्छे ढंग से किया, क्या ये काम जो है क्या ये इन्होंने फेथफुली निभाया. तो ये भी आपको डेमोक्रेसी हक देती है. तो ये जो आपके लीडर्स हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है, बिकॉज
देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द राइट्स, और राइट और ड्यूटी की एक कोरिलेशन है, वायर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल आपका राइट है तो स्टेट की ड्यूटी बनती है इस राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड वायर देयर इज अ ड्यूटी देयर इज अ राइट। तो आपका राइट है तो आम लोगों की ड्यूटी बनती है आपके इस राइट को रेस्पेक्ट करना। सो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द राइट्स एंड द ड्यूटी, दीज आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। तो सेम वाइज जो आपके लीडर्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट करते हैं, चाहे नेशनल लेवल चाहे लोकल लेवल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों को सुने, उनकी ग्रीवियंस को सुने और उनके जो सजेशंस हैं, उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल करें। So this is the why there on one side it's a right on the people, the right on people to elect their representative. On the other hand, it's a duty of the representative to listen to the grievances of the common masses, to listen to the works and needs and suggestions of the common people. So on one hand, there is a right of the people to elect their representative. On the other hand, there is a duty towards this representative to respect the aspiration, to respect the suggestion, to respond to the needs and grievances of the common people. तो ऐसा क्या है कि इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बनी, इसका एक रेगुलर इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी 5 साल के लिए बनी फिर वो पार्टी कहेगी नहीं नहीं भाई मैं बन गया अब मुझे कोई नहीं हटा सकता है। नो, दैट इज़ नॉट द केस। तो ऐसा है कि एक लॉ ने एक पर्टिकुलर टाइम को प्रिस्क्राइब किया है कि जो भी पावर में है वो खाली इतने टेन्योर के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 5 year दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर, दे कैन एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। तो उसके बाद अगर लोग फिर से उनको मुंतखब कर सकते हैं तो फिर से वो 5 साल के लिए अपना पावर गेन कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी गेन कर सकते हैं। बट दिस इज टेम्पररी पावर शिफ्टिंग, ये परमानेंट नहीं है। तो जितने टाइम के लिए लोगों को लगेगा वो उनको इलेक्ट कर सकते हैं, रिपीटेडली भी कर सकते हैं या एक टेन्योर के लिए कर सकते हैं, फिर दूसरे टेन्योर के लिए वो नहीं कर सकते हैं। तो ये अब इलेक्शंस कैसे फेयर होंगे, कैसे फ्री होंगे, तो इनके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो एक इलेक्शन कमीशन होता है, तो इस इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि ये अपने पर्टिकुलर टाइम में ये इलेक्शन कंडक्ट करें। ये हाईली प्रोफेशनल बॉडी होती है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमीशनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये हाईली ट्रेनड होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी होती है। तो ये अनाउंसमेंट निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया देयर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। In India, there is a multi-party system. For example, there is Bharatiya Janata Party, there is Congress, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देयर इज आरजेडी, देयर इज तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। सो देयर आर सो मेनी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया, विच आर रनिंग इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि ये एक नोटिफिकेशन जारी करता है, तो ये पार्टीज फिर इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। हर पार्टी अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन अपने जो इनके लीडर्स होते हैं उनको ग्राउंड में भेज देते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके लिए बनाए जाते हैं। सो दीज पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो कैंपेन कर सकते हैं थ्रू मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, कुछ भी हो, वो कैंपेन कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में आपको वोट डालने का हक दिया जाता है। सो दिस वोट इज़ कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल होता है आपका वोट, यानी उसके लिए सेक्रेट बैलेट्स बनाए जाते हैं। तो सेक्रेट बैलेट्स में आप
अपना वोट डालते हैं, चाहे वो मशीन के, जिसको हम कहते हैं वीपैट सिस्टम, चाहे उससे या बैलेट सिस्टम जो भी हो, तो आपको वोट डालने का हक दिया जाता है विच इज सेक्रेट। तो आप वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, उनको आगे जाने का मौका देते हैं। सो इस वोटिंग में इट मस्ट बी फ्री ऑफ करप्शन, इट मस्ट बी फ्री ऑफ इंटिमिडेशन, इट मस्ट बी फ्री ऑफ फ्रॉड। तो ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, वो पूरा इस पे नज़र रखती है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ गुड वर्क, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को अंजाम देने में एक हाईली प्रोफेशनल बॉडी होती है, और इसमें इस प्रोफेशनल बॉडी को टाइम भी लगता है टू कंडक्ट इट इन ए फेयर एंड फ्री मैनर। तो ये पूरा सिस्टम जो है, इसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑन द पीरियडिक टाइम। तो दिस इज जस्ट वन एसेंशियल future of the democracy. So the rest four we will discuss in our coming lectures. Thank you.